تلنگانہ کے ضلع میدک کے چنا شنکرمپیٹ علاقے میں گزشتہ رات نشے کی حالت میں گھومنے والے 2 افراد ایک خشک کنویں میں گر گئے۔ مقامی افراد نے کنویں سے مدد کے لیے چیخ و پکار کی آوازیں سننے کے بعد متعلقہ حکام کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور لمبی سیڑھی کی مدد سے کنویں میں اتر کر دونوں افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ ان میں سے ایک کی شناخت 59 سالہ بھاسکر کے طور پر ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں افراد نشے میں تھے اور رات کے وقت علاقے میں گھوم رہے تھے کہ اچانک خشک کنویں میں جا گرے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنویں کے اندر ایک لمبی سیڑھی رکھی گئی ہے، جبکہ امدادی کارکن رسی کی مدد سے دونوں افراد کو باہر نکال رہے ہیں۔ بچائے گئے دونوں افراد کو طبی نگہداشت کے لیے منتقل کر دیا گیا اور ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ پرجاوانی میں موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ پیر کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس کے کانفرنس ہال میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف مسائل کے حل کے لیے ضلع بھر کے لوگوں کی طرف سے جمع کرائی گئی درخواستیں ضلع کلکٹر کے ساتھ ضلع ایڈیشنل کلکٹر مدھو موہن نرسنگا راؤ اور لینڈ ایکومڈیشن اسپیشل ڈپٹی کلکٹر کرشنا کو موصول ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گدوا ضلع کلکٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پرجاوانی پروگرام کے ذریعے لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی شکایت کی مکمل جانچ کریں اور انہیں بر وقت حل کرنے کی سمت کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے مختلف محکموں سے متعلق کل 80 شکایتیں موصول ہوئی۔ پرجاوانی کے بعد کلکٹر نے تمام محکموں کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ 2 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ کو شاندار طریقے سے منانے کے لیے تال میل سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں دھان اور مکئی کی خریداری مراکز کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام سرکاری محکموں میں زیر التواء فائلوں کو 15 جون تک کلیئر کیا جائے۔ پروگرام میں مختلف محکموں کے ضلعی افسران اور دیگر نے شرکت کی۔ مدھول ایم پی ڈی او آفس کے سینئر اسسٹنٹ ناظم الدین کا تبادلہ نساپور کر دیا گیا۔ مدھول میں عائشہ افروز خان سابق صدرنشین منڈل مدھول کے 5 سالہ دور صدارت میں جناب ناظم الدین سینئر اسسٹنٹ نے اپنی محنت اور لگن سے کام کیا تھا اور ان کے تبادلے پر جناب افروز خان نے ناظم الدین کی گل پوشی کی۔ انہوں نے مدھول ایم پی ڈی او آفس میں تقریباً 6 سال خدمت انجام دی اور ان کی خدمت کی ستائش کی گئی۔ اس موقع پر ایم پی ڈی او لاوا کمار، افروز خان، سید خالد، سنجیو کمار اور گوتم اور دوسرے موجود تھے۔ ریاستی وزیر برائے طبی و صحت خدمات دامودر راج نرسمہا نے ضلع سنگاریڈی کے حلقے آندول کے منڈل الادرو کے موضوع ماندہ پورم سے تعلق رکھنے والی نرسنگ طالبہ پی سرونتی 20 سالہ کی سڑک حادثے میں المناک موت پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پامالا سروتی اپنے آبائی موضوع سے حیدرآباد میں واقع کالج جا رہی تھی۔ اسی دوران قومی شاہراہ پر ایک تیز رفتار لوری نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے آنجہانی کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دیتے ہوئے طلباء اور نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کرے اور دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حادثات سے ممکنہ بچے رہیں۔ ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز نرمل بی وینکٹیشورلو IAS نے FAC کی بنیاد پر چیف ایگزیکٹو آفیسر نرمل کی زائد ذمہ داری کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی CO سری ڈی شنکر، سپرنٹینڈنٹ سری آر پوشٹی، سینئر اسسٹنٹ شاہد احمد اور دیگر اسٹاف نے ZPP نرمل کے دفتر میں ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 4 اور 5 جون کو 2 روزہ دورے کے دوران متحدہ محبوب نگر ضلع کے اہم آبپاشی منصوبوں کا معائنہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ وسیع پیمانے پر انتظامات میں مصروف ہے۔ آج ضلع کلکٹر ہیمانت کیشو پٹیل نے متعلقہ SP
डॉक्टर संग्राम सिंह जी पटेल के हमरा हलके कोल्हापुर के सोमाशीला और नल्लापुर इलाकों के अलावा हलके नागर कर्नूल के अदिया इलाके का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान ने सबसे पहले सोमाशीला में वाक़े हरिता गेस्ट हाउस का मुआयना किया। वज़ीर आज़ा के क़याम के लिए मख़्तस कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, आरामगाह, पीने के पानी, बिजली, साफ सुथराई की सहूलतों का जायजा लिया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि मुत्तहिदा पालामू ज़िले के आपाशी मंसूबों पर मुनक़िद होने वाले जायज़ इजलास के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र ज़िले एसपी ने सिक्योरिटी इंतज़ामात का ख़ुसूसी जायज़ा लिया। बोधन बल्दी इंतजामिया की जानिब से ईद उल अज़हा से क़ब्ल और बाद अज़ा बोधन के शहरी इलाकों में मौसर इंतजामात किए जाने पर बरसे इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के अरकान ने बल्दिया फ्लोर लीडर शरत रेड्डी, टाउन सदर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सदर बोधन नवीन और वाइस प्रेसिडेंट ज़िले निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी शेख मोहिउद्दीन पाशा ने कमिश्नर बल्दिया बोधन और महकमे सैनिटरीज के उहदेदार अमले के अफराद की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी तहनीत की। इस मौके पर मोहिउद्दीन पाशा ने खिताब करते हुए कहा, ईद उल अज़हा की आमद से कबल बल्दिया बोधन की जानिब से शहर की तमाम मसाजिद ईदगाह के पास बेहतर साफ सफाई और नलों के जरिए बिला खलत महफूज पीने के पानी की सरबराही पर उन्होंने चेयरपर्सन बल्दिया पदमा शरदी खासकर महकमे आबसानी के उहदेदार अमले की सताइश की। बोधन डिवीजन के कोटगीर मंडल में वाक़े MPDO ऑफिस के सामने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के हमरा मुनज़्ज़म करदा एहतजाज की क़यादत करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी वादे पर अमल दरामद करते हुए चियोता स्कीम के तहत 4000 रुपये पेंशन जारी करने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में तेलंगाना तरक्की पसंद बीड़ी वर्कर्स यूनियन TUCI बोधन एरिया कमेटी की क़यादत में ख़वातीन बीड़ी मजदूरों की कसी तादाद ने एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर MPDO को मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की गई। TUCI के ज़िले नायब सदर B मल्लेश ने याद दहानी कर रहा, दिसंबर साल 2023 के दौरान हुए असम्बली के आम इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी ने वादा किया था, अगर कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आती है तो अंदरून 100 दिनों में तमाम बीड़ी मजदूरों को जिन्हें ताहाल पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन फौरी असर के साथ 4000 कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक इतने साल गुजर गए हैं, किसी पर भी अमल नहीं किया गया। इस एहतजाज में बालाकृष्णा के अलावा बीड़ी मजदूर रहनुमा कलावती, लक्ष्मी, गंगामणि, सावित्री, सुनंदा, बीड़ी मजदूर ख़वातीन की तादाद मौजूद थी। एल्लारेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में दाखिलों का आगाज। शिद्दत की धूप में भी लेक्चरर्स के दाखिलों के लिए तशहीरी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ मवाज़ात का दौरा कर रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर निज़ाम ने मज़ीद बताया कि इस तालीमी साल से कॉलेज की हर क्लास में डिजिटल पैनल भी मौजूद है। मुफ्त तालीम के साथ तलबा को जाया साल से मिड डे मील फराहम किया जा रहा है और सुबह नाश्ते का भी नज़्म रहेगा। तलबा को इस्तिफादा करने का मशवरा दिया जाता है। BC तबके के फलाही तंजीम कायद प्रशा हंडमांडुलू की 50वीं सालगिरह के मौके पर गंभीराव पेट में BC संगम कायदीन ने तक़रीबात का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकामी ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को फल और ब्रेड के पैकेट तकसीम किए गए। कायदीन ने कहा कि प्रशा हंडमांडुलू ने तहरीक तेलंगाना में BC तबका के हकूक़ समाजी इंसाफ के लिए नुमायां काम किया। उन्होंने की मज़ीद कामयाबी और दराज़ी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती कांग्रेसी कायद डॉक्टर उज्ज्वल रेड्डी की हमरा ज़हीराबाद मिड डे मील स्कीम के तहत खिदमात अंजाम देने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन को दरपेश मसाइल के खुसूस में रियासती वज़ीर दामोदर नसीमा से मुलाकात करके तफसीली बातचीत करते हुए मिड डे मील वर्कर्स ने बताया कि गुज़िश्ता 16 सालों से बगैर किसी शिकायत के सेल्फ हेल्प ग्रुप ख़वातीन तलबा में दोपहर का खाना तैयार कर रही हैं। अचानक बगैर किसी पेशगी इत्तला के उन्हें खिदमात से हटाकर मज़कूरा स्कीम को अक्षय पुत्रा फाउंडेशन के हवाले करने के मंसूबे से हज़ारों ख़वातीन बेरोजगार हो जाएंगी। मुतासिरा ख़वातीन के वफ़द ने रियासती कांग्रेस कायद डॉक्टर उज्ज्वल रेड्डी ने फौरी तौर पर इस मसले को रियासती वज़ीर सेहत दामोदर नसीमा की नुमाइंदगी की, जिस पर रियासती वज़ीर ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ज़िले कलेक्टर संगा रेड्डी को हिदायत जारी की और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की तैयारी का काम सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ख़वातीन के जरिए अंजाम देने की हिदायत दी।
एल्लारेड्डी बीआईएस पार्टी साबिक टाउन सदर सतीश कुमार ने एक प्रेस मीट के जरिए कांग्रेस को बीआईएस पार्टी के कामयाब इजलास से बौखलाहट का शिकारों का बीआईएस पार्टी से खौफजदा होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने किसानों से जाकर मुलाकात करने का मशवरा दिया ताकि उनकी सच्चाई का जवाब मिल सके। कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में मुकम्मल तरीके से नाकाम करार दिया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन में गंगा रेड्डी, दयाकर, देवदास, साइलू, मोहम्मद इमरान, अरविंद गौर, बरकतुल्ला खान, मोहम्मद यूनुस, बबलू, राजैया और दूसरे भी मौजूद थे। जहीराबाद कमिश्नर बल्दिया जेतुराम नायक की वजीफे हुस्न पर सबकदोशी के बाद जहीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से जी प्रभाकर ने जहीराबाद म्यूनसिपल दफ्तर बल्दिया पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जहीराबाद सियासी महकमे बल्दिया के ओहदेदारों ने उन्हें तहनीत पेश की और जहीराबाद कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से मुकर्रर होने पर मुबारकबादी पेश की। कमिश्नर बल्दिया जी प्रभाकर ने कहा कि जहीराबाद की बल्दी हदूद में तरक्याती काम, अवामी मसाइल के यकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मुतालिका वार्ड्स में अराकीन बल्दिया के हमरा अवामी बुनियादी मसाइल की यकसुई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अवाम को अपने मसाइल लेकर महकमे बल्दिया में उनसे रुजू होने का भी मशवरा दिया। जिले कलेक्टर निजामाबाद एला त्रिपाठी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को तरजीही बुनियादों पर निपटते हुए उनकी जल्द अज जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाए। आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावाणी में 148 शिकायतें मौसूल हुई, जिन्हें मुख्तलिफ महकमे जात से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हवाले किया गया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए शिकायत गुजारों ने अपने मसाइल कलेक्टर एला त्रिपाठी के अलावा एडिशनल कलेक्टर्स किरण कुमार और भोजिंग राव, DRO गीता, जिले परिषद CEO सायागौर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO सिवास, DRDO सायन्ना और बोधन ACP सिवास को पेश करते हुए दरख्वास्तें जमा करवाई। आरमूर पुलिस ने 41 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के चोरी केस को हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम विजय अग्रवाल ने अपने ही चाचा के घर में चोरी की साजिश रची थी और साथियों के जरिए वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 31,48,000 रुपए मालियत का सोना, चांदी, नगद और दीगर अशिया को बरामद कर लिया, जबकि एक मुलजिम ताहाल मफरूर है। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है और मफरूर मुलजिम की भी तलाश की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना में 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना का रियासत भर में बड़े पैमाने पर इनेकाद और अज़लाम कौमी परचम कुशाई के लिए रियासती वज़ीर और दीगर अहम कायदीन का ऐलान किया गया। जगतियाल के लिए रियासती वज़ीर अक़लियती फलाह बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन 2 जून को बतौर मेहमान ख़ुसूसी जगतियाल पहुंचेंगे और उनके हाथों कौमी परचम कुशाई अमल में लाई जाएगी।